Hello students, I welcome you all on our YouTube channel where we are giving you free GATE classes. I am Ankush Kumar Gupta. I done my MTech from IIT Roorkee. Currently, I am working as assistant professor in MBM Engineering College under TechU third scheme. I am in the teaching field since 2017. In this course, we discuss about basic civil engineering, in which we already discussed about what is the civil engineers, what is the scope of civil engineers, what is the role of civil engineers for society. Then we discussed about the basic of the surveying. In that video, we discussed about what is the surveying, what is the principle of surveying, how to classify the surveying. Surveying is classified on the base of the purpose and based on the instrument used. Then we discussed about measurement, linear measurement. In linear measurement, there are three types: direct measurement, optical measurement, then EDM, electronic distance measurement. Then we discuss about the direct measurement. In the instrument used for direct measurement are chain, tape, arrow, wrenching rod, plumb bob. Then we discuss about the different type of the chain and different type of the tape. There was the metric chain, gunter chains, engineer chain, tape, cloth tape, metallic tape, steel tape, invert tape, and we discuss about the advantage and disadvantage of different type of the tape and the chain, and the where we use different tape and the chain. Then we discuss about the accuracy and precision. What is the accuracy and what is the precision, and what is the difference between the accuracy and the precision. Then we discuss about the error, the source of the error, and the type of the error. There are the three sources of the error: instrumental error, personal error, and natural error. Clear? Then we discuss about the kind of the error, type of the error, where we first is the mistake that is occurred due to the inattention, inexperience, carelessness. Clear? Then we discuss about the systematic error. Systematic error can also known as the cumulative error, because that type of the error follow a system either that is positive or negative. Then we discuss about the compensating error, that is also known as the accidental error. Why we known as accidental error? Because when we eliminate or remove the mistake and systematic error from the measurement, then remaining error is known as the accidental error and system and compensating error. It does not follow a mathematical law. It can be positive in one measurement and it can be negative in next measurement. So that we know this error is as compensating error. It follow the law of probability, because there may be chance that it may be occur or it may not be occur. It may be negative or it may be positive. So it is a probability, so that it follow the law of probability. Where we discuss about 3 point कि वहां पर किन 3 पॉइंटों के बारे में डिस्कस करा था. यदि अपन वहां पर मेजरमेंट छोटी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो देयर इज द चांस कि वहां पर एरर होने की संभावना ज्यादा होगी. इफ वी मेजर द लार्ज वैल्यू, अपन बड़ी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, देन देयर इज द लेस चांस टू अकर द एरर. और वहां पर पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर होने की संभावना इक्वल होती है. इसलिए वहां पर वो क्या होता है, कर्व ऑफ प्रोबेबिलिटी को क्या करता है, वहां पर फॉलो करता है. इसलिए बोला जाता है यहां पर इसको दिस एरर फॉलो द प्रोबेबिलिटी कर्व. यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था. अब आता है कि हमारी यदि कोई चेन है, हम चेन को फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लीनियर मेजरमेंट के रूप में यूज लेते हैं. अब वहां पर यदि आपके पास चेन है, वो चेन अपने स्टैंडर्ड चेन के बराबर नहीं है. स्टैंडर्ड चेन के बराबर नहीं है तो मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड चेन के बराबर नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, माना कि स्टैंडर्ड चेन हमारी
20 मीटर की होनी चाहिए थी, लेकिन वह चैन 20 मीटर की ना होके जो कंपनी थी उसने वहां पर उसको 19 मीटर की ही बनाई। तो ऑब्वियसली वहां पर अपन तो क्या समझेंगे, वहां पर चैन 20 मीटर की, उससे अपन यदि मेजरमेंट करेंगे तो वहां पर कोई ना कोई एरर आएगी। वो एरर कैसे आएगी, जैसे माना कि स्टैंडर्ड चैन 20 मीटर की होनी चाहिए थी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है मैट्रिक चैन क्या होती है, 20 मीटर की, 30 मीटर की ये होती है, लेकिन कंपनी ने आपको वहां पर 19 मीटर चैन दी है, लेकिन आपको क्या पता है ये 20 मीटर की चैन है। ठीक है, स्टैंडर्ड, क्योंकि अपन तो स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, अपन क्या मान के चल रहे हैं, क्या चैन इज 20 मीटर, वहां पर चैन 20 मीटर की है, लेकिन वहां पर एक्चुअल में चैन कितने मीटर की है, वो 19 मीटर की है। अब उससे अपन ये मेजरमेंट करते हैं, ए बी लाइन को मेजर करते हैं। ठीक है, माना कि ये वो डिस्टेंस एक्स है, अब इसको मेजर करते हैं, तो अपन यहां पर एक मेजरमेंट करा, 2 करा, 3 करा, और आगे आगे करते जाएंगे। तो अपन ने माना कि यहां तक ही मेजरमेंट कर लिया, ठीक है, यहां तक को अपन बोल देते हैं, यहां तक अपन ने मेजरमेंट कर लिया। क्लियर है यहां तक? तो अपन क्या बोलेंगे, अपन को क्या पता लगेगा, यहां पर अपन ने दो यहां पर इंटरमीडिएट पॉइंट डिसाइड करा, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, ये 20, ये 60, ये कितने मीटर की होगी, यहां पर 60 मीटर मैं बोल दूंगा, बोलूंगा नहीं बोलूंगा, बट वहां पर ये डिस्टेंस कितनी है, उसने ओनली कितनी मेजरमेंट करा है, यहाँ पर 19, ये भी 19 मेजर करा, ये भी 19 मेजर करा, तो इसका मतलब उसने ओनली कितनी मेजर करी, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 57 मीटर की है, और यहां पर आप उसको कितनी बोलोगे, 60 मीटर बोलोगे। यहाँ पर ए बी लाइन कितने मीटर की, ओनली 57 मीटर की है, और आप उसको कितनी बोलोगे, 60 मीटर की। क्यों? क्योंकि आप तो क्या मान के चल रहे हो कि चैन इज स्टैंडर्ड एंड 20 मीटर, बट चैन इज नॉट इक्वल टू द स्टैंडर्ड लेंथ, चैन इज ओनली 19 मीटर लेंथ। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपकी चैन एक्चुअल चैन से कम है, या आपकी चैन एक्चुअल चैन से ज्यादा है, तो वहां पर मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर आएगी। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं, इफ द चैन इज टू लॉन्ग, यदि वहां पर चैन बड़ी है तो डिस्टेंस आप क्या मेजर करोगे, कम मेजर करोगे। जैसे कैसे, यहां पर माना कि आप 57 मीटर की है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, माना कि ये 50 सेंटीमीटर की ये लाइन है, यदि आप वहां पर 21 मीटर की लेंथ से मेजर करोगे, लेकिन आपको क्या पता है यहाँ पर 20 मीटर है, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 यहाँ आ जाएगा, 21 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, और कम आ जाएगा। तो आप वहां पर क्या बोलोगे, वह लेंथ 57 मीटर की नहीं बोलोगे, आप वहां पर उस लेंथ को गड़बड़ बोलोगे, मतलब आप कम डिस्टेंस को मेजर करोगे। तो एक और एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर माना कि ये ए बी लेंथ है, आप मेजरमेंट कितने मीटर का कर रहे हो, 21 मीटर का, लेकिन आप उसको बोलोगे कितना, 20 मीटर। मेजर 21 मीटर को कर रहे हो, लेकिन बोलोगे कितना उसको, 20 मीटर, तो वहां पर डिस्टेंस आपकी क्या आई, लेस आई है, कम ज्यादा आई, तो डिस्टेंस विल बी लेस, तो वहां पर एरर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और एरर यदि नेगेटिव हो गई, मतलब एक्चुअल में वो 21 मीटर डिस्टेंस मेजर कर रहा है, आप बोल कितना रहे हो उसको, 20 मीटर, एक्चुअल मेजर कितना कर रहा है वो, 21 मीटर, बट you are telling that this distance is 20 meter. Why? Because you are considering this, the chain is standard chain, the chain is standard chain. Clear है? तो आपके वहां पर डिस्टेंस आप क्या लिख रहे हो, कम लिख रहे हो, तो एरर आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव, एरर नेगेटिव आ रही है, तो आपका करेक्शन क्या होगा, वहां पर करेक्शन इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका वाइस वर्सा बात करते हैं, यदि वाइस वर्सा बात करें तो यहां पर माना कि ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर की है, ठीक है, माना कि ये डिस्टेंस 20 मीटर, तो आप जैसे वहां पर 90 मीटर मेजर करोगे, तो आप उस 90 मीटर को ही क्या बोलोगे, यहां पर 20 मीटर, उसके बाद में ये एक्स्ट्रा और जोड़ोगे, तो मतलब वहां पर आप 20 मीटर की जो लाइन है उसको आप क्या बोल रहे हो, 20 प्लस समथिंग मेजर कर रहे हो, 20 मीटर की लाइन को आप क्या मेजर कर रहे हो, वहां पर 20 प्लस समथिंग, इसका मतलब आपकी मेजर डिस्टेंस वहां पर एक्चुअल चैन से कितनी, एक्चुअल लेंथ से कितनी आ रही है, ज्यादा आ रही है, और यदि आपकी एक्चुअल मेजर लेंथ
एक्चुअल लेंथ से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आपकी एरर, आपका एरर क्या है, पॉजिटिव है। और आपका यदि एरर पॉजिटिव हो गया, एरर यदि पॉजिटिव हुआ तो करेक्शन क्या आएगा वहां पर, नेगेटिव आएगा। क्लियर है? करेक्शन क्या आएगा वहां पर, नेगेटिव आएगा। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करते हैं, यदि अपन यहां पर मैंने तीन यहां पर चैन की लेंथ दे दी है, टेप की लेंथ दे दी है। चैन की लेंथ माना कि अपन ने जो डिजाइन लेंथ है, ट्रू लेंथ है, अपन को वहां पर चैन की लेंथ कैपिटल एल है। इनकरेक्ट लेंथ मतलब बोल सकते हैं एक्चुअल लेंथ कितनी है, वो एल डैश है। एल डैश क्या है वहां पर, जो जिससे आप मेजर कर रहे हो। एल क्या है वहां पर, जितने पे उसको डिजाइन करनी चाहिए थी। स्मॉल एल डैश क्या है यहाँ पर, कि आपने जो लाइन मेजर करी है, आपने जो डिस्टेंस मेजर करी है। स्मॉल एल क्या है यहाँ पर, जो आपकी एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर, वही एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूं। ठीक है, आपके फिर से एग्जांपल ले रहा हूं कि यहाँ पर ए बी लाइन है, वो 20 मीटर की है। आप यदि वहां पर छोटी चेन से मेजर कर रहे हो तो आपकी लेंथ क्या आएगी, 20 प्लस एक्स आएगी। तो 20 प्लस एक्स जो लेंथ है वो क्या है वहां पर, मेजर लेंथ है। और 20 मीटर आपकी क्या है वहां पर, एक्चुअल लेंथ है या ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपको ये वैल्यू आपको निकालनी होती है, आपको पता नहीं है, आपको थोड़ी देगा ग्राउंड में। ग्राउंड में तो आपको ये दे देगा, ये दे देगा, और आप जो मेजर करोगे वो आपको पता होगा। तो आप उस कंडीशन में हाउ टू मेजर द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। तो इससे पहले भी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि ट्रू लेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इक्वल टू मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन इनटू वहां पर रोंग लेंथ या एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप डिवाइडेड बाय ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। देख लो एल क्या है, एल डैश क्या है। क्लियर है? तो यहां पर अपन इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसी फॉर्मूले से इसको रिलेट करिए। रोंग स्केल इनटू रोंग लेंथ इक्वल टू करेक्ट स्केल इनटू करेक्ट लेंथ। पढ़ा था अपन ये, इसी से रिलेट करिए। रोंग स्केल की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर रोंग लेंथ को यहां पर अपन क्या ही बोल सकते हैं, यहां पर एक्चुअल लेंथ। ठीक है, इनटू रोंग लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर मेजर्ड लेंथ इक्वल टू करेक्ट स्केल की जगह क्या जाएगा, यहां पर डिजाइंड स्केल। डिजाइंड स्केल क्या जाएगा, डिजाइन लेंथ ऑफ द टेप और चेन इनटू ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, इनटू ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। आएगा नहीं आएगा? तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर ट्रू लेंथ मेजर करना है, कैलकुलेट। तो ट्रू लेंथ अपन ने किससे बोला, यहाँ पर स्मॉल एल से। ठीक है, यहाँ पर रोंग एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप वो चेन कितना वहां पर, कैपिटल एल डैश। डिजाइन लेंथ ऑफ द चेन कितनी यहाँ पर, एल। और आपने मेजर जो करा उसकी वैल्यू कितनी दी है वहां पर, एल डैश। तो आपका फॉर्मूला सेम आ रहा है नहीं आ रहा, देखो आपका फॉर्मूला यही आ रहा है। तो यहां से आपको पता लग गया होगा कि क्या चीज क्या है, कि कैसे अपन कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो आपको एग्जामिनेशन में क्या दिया जाएगा पेपर में, कि आपका चेन, आपको एक चेन एक्चुअल जो डिजाइन चेन है 20 मीटर की थी, उसको एग्जाम कंपनी ने उसको 20 मीटर की ना बना के उसको 5 सेंटीमीटर छोटी बना दी है। 5 मीटर छोटी बना दी है, तो आप डिस्टेंस क्या मेजर करोगे, ज्यादा। तो वहां पर एरर क्या आएगी, पॉजिटिव। एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यदि आपकी चेन बड़ी है तो आप वहां पर मेजरमेंट क्या करोगे, कम करोगे। कम करोगे तो वहां पर एरर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एरर नेगेटिव आएगी तो वहां पर करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है। वैसे आप फॉर्मूला अपन को कहां पॉजिटिव आएगी, कहां नेगेटिव आएगी, ये तो अपन ने लेंथ की बात कर ली है। यदि अपन इसी तरह वहां पर एरिया की बात करते हैं, तो एरिया का, ट्रू एरिया का फॉर्मूला निकालना चाहो तो क्या जाएगा, यहाँ पर आप खुद बताओ, मैंने लिखा नहीं है। ट्रू एरिया क्या जाएगा आपका, मेजर्ड एरिया इनटू लेंथ ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप और चेन डिवाइडेड बाय डिजाइन लेंथ ऑफ द टेप और चेन, और इसका क्या जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर एरिया क्या है, लेंथ इंटू लेंथ है। एरिया क्या है वहां पर, लेंथ इंटू लेंथ है। सो
यहाँ पर इसमें भी क्या आया, क्योंकि अपन ने जब स्केल वाला यूज करा था, स्केल में भी क्या आ रहा था वहां पर, जब व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया तो वहां पर क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यदि अपन ट्रू वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। तो क्या जाएगा, मेजर्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एल डैश डिवाइडेड बाई एल का क्यूब। आई बात समझ में नहीं आई? यहां तक क्लियर है? तो एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ कैसे मेजर करेंगे, ये सब चीज क्लियर हो गई होगी। जिसको लिखना है वो लिख लीजिए, यहाँ पर जिसको फॉर्मूला लिखना है वो लिख लो। अपन वेट कर लेते 2 मिनट। जिसको भी लिखना है वो फॉर्मूला लिख लीजिए कि ट्रू लेंथ क्या होती है, ट्रू एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे 1-2। ठीक है, अब अपन न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, द लेंथ ऑफ ए लाइन measured with a 20-meter chain was found to be 250 meter. Calculate the true length of the line if the chain was 10 centimeter too long. क्वेश्चन दोबारा सुनिए। The length of the line measured with a 20-meter chain was found to be 250 meter. Calculate the true length of the line if chain was 10 centimeter too long. क्वेश्चन समझ आया? पहले सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या, अपने पास डेटा क्या क्या है उसको लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, वहां पर इनकरेक्ट चेन वाला क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा होगा, ट्रू लेंथ दे रखी है, एक्चुअल मतलब रॉन्ग लेंथ दे रखी है, सब चीज दे रखा है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा डेटा गिवन है, यहाँ पर आपकी मेजर लेंथ कितनी है, मेजर लेंथ को अपन ने किससे नाम दिया था, एल डैश से। मेजर लेंथ कितनी है आपकी, 250 मीटर। ठीक है, आपका वहां पर चेन की जो लेंथ है, चेन की जो लाइन है, चेन डिजाइन चेन लेंथ, यहाँ पर चेन कितने डिजाइन की है, 20 मीटर की चेन से मेजर करा है। तो डिजाइन और चेन लेंथ ऑफ द चेन कितनी हुई यहाँ पर, 20 मीटर। बट बाद में उसको क्या पता लगा कि चेन तो 20 मीटर की नहीं है, चेन तो 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो वहां पर 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो मतलब एक्चुअल चेन, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन कितनी है, वहां पर एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन कितनी हुई, एल डैश हुई या नहीं हुई? तो एल डैश कितनी हुई आपकी, एल डैश कितनी है यहाँ पर, 20.1 मीटर, 20.1 मीटर। तो आपसे पूछा क्या है वहां पर, स्मॉल एल आपसे पूछा है, स्मॉल एल आपसे पूछा है। तो स्मॉल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, स्मॉल एल इक्वल टू एल डैश डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। देखो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, स्मॉल एल इक्वल टू क्या जाएगा, 250, सॉरी एल डैश कितना है वहां पर, 250, और कैपिटल एल डैश कितना है वहां पर, 20.1 डिवाइडेड बाई 20 आएगा नहीं आएगा? तो यहां से आपका एल डैश कितना आ रहा है, यहां से आप सोल्व करिए, आपका एल डैश कितना आएगा। अब आप खुद सोचिए, आपकी चेन लेंथ एक्चुअल लेंथ से ज्यादा है, एक्चुअल लेंथ से ज्यादा है, तो आपने मेजर क्या करा होगा, कम करा होगा। मेजर कम करा होगा तो करेक्शन क्या होगा, सॉरी एरर क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगी, मतलब करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। करेक्शन पॉजिटिव मतलब आपकी वैल्यू क्या है, 250 मीटर से ज्यादा आनी चाहिए। यदि आपने वहां पर देखो चेन की जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ से ज्यादा है, एक्चुअल लेंथ से ज्यादा होगी तो आपने मेजर क्या करा है, कम डिस्टेंस मेजर करिए, कम डिस्टेंस मेजर करिए। इसका मतलब जो लाइन है, लेंथ, जो लाइन की लेंथ है वो 250 से ज्यादा है, 250 से ज्यादा आनी चाहिए। यदि आप, तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो हाथों हाथ, कंसेप्ट और मतलब जो कंसेप्ट के द्वारा आप अपने डेटा को, जो आंसर जो आ रहा है उसको चेक कर लीजिए। तो आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पर, 251.25 मीटर, ये आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली वहां पर 250 मीटर से ज्यादा आ रहा, नहीं आ रहा, 250 मीटर से ज्यादा, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, वहां पर आपका सोल्यूशन क्या है, सही है। सॉल्यूशन में कोई डाउट है लिख लीजिए, जिसको भी डाउट है मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं न्यूमेरिकल को, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। देखो यहाँ पर आपकी जो चेन है, डिजाइन चेन लेंथ कितनी है यहाँ पर, 20 मीटर।
लेकिन वहां पर जो चैन है वो 20 मीटर की नहीं थी, वहां पर 10 सेंटीमीटर क्या हो गई, बड़ी हो गई, 20.1 मीटर। आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या है, वहां पर मेजर्ड वैल्यू क्या है, 250 मीटर। आपसे क्या पूछा है, एक्चुअल या ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। जब चैन, मैंने अभी भी कंसेप्ट बताया, यदि चैन की लेंथ एक्चुअल चैन से ज्यादा होगी तो आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, कम। जैसे दोबारा मैं समझा देता हूं जिसको कंफ्यूजन था। माना ए बी लाइन, वहां पर ए बी लेंथ है, तो ए बी लेंथ माना 20 मीटर की है, 20 मीटर की है, ठीक है। तो वहां पर आप जैसे वहां पर 21 मीटर से मेजर करोगे तो वहां पर 21 तो आगे तक जाएगा, लेकिन आपकी ये चैन है वो क्या हो जाएगा, कम शो करेगा। करेगा नहीं करेगा, बोलो। 21 तो आगे तक जाएगा, लेकिन अब 21 को अपन क्या समझेंगे, 20। तो आपकी ये जो रीडिंग है वो कितनी देगी, यहाँ पर 19 ही देगी, मतलब 18 से 19 के बीच की देगी। तो वहां पर डिस्टेंस क्या मेजर कर रहे हो, कम मेजर कर रहे हो, कम मेजर कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर क्या एक्चुअल में वो कितनी है, 20। और 20 तक पहुंचने के लिए आपको वहां पर उसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जोड़ना पड़ेगा तो इसका मतलब आपको करेक्शन क्या करना पड़ रहा है, पॉजिटिव करना पड़ रहा है, ठीक है। करेक्शन आपको क्या करना पड़ रहा है, पॉजिटिव करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, चैन की जो लेंथ है वो क्या है, एक्चुअल चैन से ज्यादा है। तो आपकी जो मेजर्ड आपने जो करी है वो वैल्यू कम होगी, लेकिन एक्चुअल में वो लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो L इक्वल टू क्या जाएगा, L डैश इंटू L कैपिटल डैश डिवाइडेड बाई दिस। क्या जाएगा यहाँ पर, 250 इंटू 20.0 इंटू 20। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू आ रही होगी आपकी 251.25 मीटर, 251.25 मीटर, ठीक है। लिख लिया सबने। अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। एक और एग्जांपल आपके पास में, द लेंथ ऑफ ए लाइन was measured with a 20 meter chain was found to be 1200 meter as a check। उसको उस अपन ने 20 मीटर की चैन से एक लाइन को मेजर करा है, वो 1200 मीटर की आती है। अब अपन ने जो मेजर करा वो सही है गलत है, उसके चेक के लिए एज ए चेक द लेंथ वाज अगेन मेजर्ड विथ ए 25 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 1212 मीटर। इसका मतलब वहां पर अपन 20 मीटर की चैन से मेजर करते हैं तो वहां पर 1200 आ रहा है, 25 मीटर चैन से मेजर करें तो वहां पर 1212 मीटर आ रहा है। इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई एरर है, या तो आपने मेजरमेंट में एरर करी है, मेजरमेंट में यदि आपने एरर करी होगी तो उसको आप पहचान नहीं सकते, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने जो चैन मेजर करी है वो सही, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही है या नहीं है, उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, 20 मीटर की चैन को गेज से मेजर करा। ऑन कंपेयरिंग द 20 मीटर चैन विद द टेस्ट गेज, it was found to be 1 decimeter too long. Then find the actual length of the 20 meter chain used. Then find the actual length of the 20 meter chain used. जो अपन ने, तो इसका मतलब क्या समझ आ गया कि 20 मीटर की जो चैन आपने यूज करी है वो 20 मीटर की नहीं थी, वो कितनी थी, वो 20.1 मीटर की है। वो कितनी है, 20.1 मीटर की है। एक डेसिमल मतलब 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 डेसीमीटर होते हैं ना, तो वही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है 25 मीटर की चैन भी क्या हो वहां पर रॉन्ग हो, वहां पर 25 मीटर की चैन भी क्या हो वहां पर इनकरेक्ट हो। तो अपन चेक करते हैं कि 25 मीटर की चैन यदि इनकरेक्ट है तो उसमें कितनी एरर थी, और यदि सही है तो बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए और बाद में अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अपनी यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ पर 20 मीटर की चैन के लिए बात करते हैं। 20 मीटर की चैन की बात करते हैं तो डिजाइन लेंथ मतलब कैपिटल एल कितना था वहां पर 20 मीटर, कैपिटल एल डैश कितना हो गया वहां पर 20.1 मीटर, हुआ या नहीं हुआ, बोलो। आपने मेजर लेंथ कितनी करी है वहां पर, मेजर लेंथ आपने कितनी करी है, मेजर लेंथ कैपिटल एल स्मॉल एल डैश इक्वल टू 1200 मीटर, करा नहीं करा। तो आपकी एक्चुअल लेंथ कितनी आ जाएगी,
ट्रू लेंथ कितनी आएगी। ट्रू लेंथ का अपन फॉर्मूला क्या पढ़ा है, स्मॉल एल डैश इक्वल टू स्मॉल एल इक्वल टू स्मॉल एल डैश इनटू एल डैश डिवाइडेड बाई एल। तो यहां से क्या जाएगा, यहां से एल डैश कितना आ रहा है आपका, एल डैश कितना है यहाँ पर 1200 मीटर, ये कैपिटल एल डैश कितना है 20.1 और डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, चेन की लेंथ डिजाइन चेन से ज्यादा है, इसका मतलब मेजरमेंट आपने कम करा है, तो एक्चुअल और ट्रू लेंथ क्या आनी चाहिए, वहां पर ज्यादा आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे इसको तो आपका जो वैल्यू आ रही है ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन जो आ रही है वो कितनी आएगी यहाँ पर 1206 मीटर। आपकी कितनी आ रही है यहाँ पर 1206 मीटर आपकी ट्रू लेंथ आ जाएगी। दोबारा देख लो यहाँ पर डिजाइन लेंथ ऑफ द टेप चेन कितनी है वहां पर 20 मीटर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल लेंथ कितनी है टेप की जो आपने जिससे आपने मेजर करा है 20.1 मीटर। आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है वहां पर 1200 मीटर। तो आपकी ट्रू लेंथ कितनी आ जाएगी, एल डैश कैपिटल एल डैश डिवाइडेड बाई एल। तो यहां से आपकी चेन की लेंथ वहां पर क्या है, एक्चुअल लेंथ से ज्यादा है, तो वहां पर आपने मेजर क्या करा है, कम करा है, मेजर कम करा है, तो एक्चुअल लेंथ क्या थी, ज्यादा थी। तो यहां से यदि ज्यादा है इसका मतलब आपका सोल्यूशन क्या है, सही है। तो यहां से L इक्वल टू क्या जाएगा 1200 इंटू 20.1 डिवाइडेड बाई 20, 20.1 डिवाइडेड बाई 20। तो यहां से आपका जब सोल्व करोगे तो आपका आएगा 1206, 1206 मीटर। ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आपका सही है। तो मतलब उस लेंथ जो वह लाइन जो आपने मेजर करी थी उसकी लेंथ कितनी है वहां पर 1206 मीटर है। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि वहां पर डिजाइन लेंथ ऑफ द जो चेन है, डिजाइन लेंथ ऑफ द जो चेन है वो कितना वहां पर 25 मीटर है। आपको कैपिटल एल डैश पता नहीं है कि आपने जो चेन मेजर करी है उसमें एरर थी या नहीं थी, नहीं थी तो आंसर सही आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल लेंथ 1206, आपने मेजर 1212 करा है, 1212 करा है, तो ऑब्वियसली वहां पर चेन में कोई ना कोई एरर थी, तो वही एरर अपन को पता करनी है। तो वहां पर आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है वहां पर 1212 मीटर, 1212 मीटर है, मेजर्ड वैल्यू इज 1212 मीटर। तो यहां से आप व्हेन यू आर सोल्व राइट द फॉर्मूला L इक्वल टू L डैश कैपिटल L डैश डिवाइडेड बाई L, फॉर्मूला इज सेम। तो L 1206, L डैश 1212, कैपिटल L डैश you don't know but L कैपिटल L इक्वल टू 25 है या नहीं है। जैसे आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो यहाँ पर L डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी L डैश की वैल्यू जैसे सोल्व करो, अब देखो यहाँ पर L डैश की वैल्यू कम आनी चाहिए ज्यादा आनी चाहिए, यहाँ पर अपन खुद पहले से देख लेते हैं। आपकी ट्रू लेंथ क्या है वहां पर कम है, आपने मेजर क्या कर लिया है, ज्यादा कर लिया है, मेजर ज्यादा कर लिया है, इसका मतलब आपकी चेन क्या है, एक्चुअल चेन से मतलब डिजाइन चेन से छोटी है। आपने यदि कोई लाइन की लेंथ एक्चुअल लेंथ से ज्यादा मेजर करी है, वह कब होता है, व्हेन योर चेन और टेप इज शॉर्टर देन द डिजाइन चेन। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू भी कितनी आ रही है यहाँ पर 24.88 आ रही है, 24.88 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आंसर क्या है वापस सही है। समझ आया, किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलिए, किसी को कोई भी डाउट हो तो इसमें बोलिए, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि यदि हमारी चेन एक्चुअल चेन के बराबर नहीं है, उससे छोटी है या बड़ी है, इट मींस इफ द चेन इज इनकरेक्ट चेन देन द लेंथ you measured is wrong, is incorrect, and you can remove and eliminate the correction by using the formula. The concept behind this that if your chain is larger than the design chain,
It means you measure the distance less than the actual length. Then the error is negative and correction is positive. And if the chain is shorter than the design chain, then you measure the distance more than the actual length. Then your correction, then your error is positive and correction is negative. ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, आगे अपन जब करेक्शन पढ़ेंगे उसमें भी मैं यही कंसेप्ट यूज लूंगा पूरी जगह। समझ आ गया? फिर से रिमाइंड कर देता हूं आपको कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? यदि चेन की लेंथ ज्यादा है, चेन ज्यादा लंबी है, तो डिस्टेंस कम मेजर करोगे, एरर नेगेटिव होगी। एरर नेगेटिव हो गई तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। यदि चेन हमारी छोटी है तो वहां पर डिस्टेंस ज्यादा मेजर करोगे, डिस्टेंस ज्यादा मेजर करोगे तो एरर पॉजिटिव आ जाएगा। एरर पॉजिटिव आया तो करेक्शन क्या होगा? वहां पर नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा, फॉर्मूला ये यूज करना ही है हमको। दोनों ने मेरे को आपको सोल्व करवा दिया। अब आता है कि यदि अपन को कोई, अपन ने अभी तक जो मेजरमेंट करा है वो कहां करा है? ऑन द प्लेन ग्राउंड पर। इफ यू वांट टू मेजर द डिस्टेंस ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड, जैसे कि आपका ये ग्राउंड है, स्लोपिंग ग्राउंड है, लेकिन अपन को यहाँ पर ये स्लोपिंग ग्राउंड है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस मेजर करना है। लेकिन आपको कोई भी सर्वे करने के लिए आपको वहां पर लीनियर मेजरमेंट करना होता है। आपको जो मेजरमेंट चाहिए होता है, जैसे आपका कोई पॉइंट है ए और बी, आपको यदि यहाँ पर ए बी की लेंथ चाहिए, मेरे को ए बी की लीनियर लेंथ चाहिए, स्लोपिंग लेंथ नहीं चाहिए। लेकिन आपका ग्राउंड ये है, हिल है ये, तो आप वहां पर ये डिस्टेंस तो जा ही नहीं सकते, मतलब पहाड़ के नीचे थोड़ी जा सकते हो, वहां पर टनल थोड़ी बना रहे हो अभी, तो आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी है। तो आपको ये डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करनी है, या वहां पर इस स्लोपिंग ग्राउंड की डिस्टेंस को मेजर कैसे करनी है, जिससे कि उसको आप ग्राउंड पर ट्रांसफर कर सको। इसके लिए वहां पर दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सिंपल सा है, इसको अपन स्टेपिंग मेथड भी बोला जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज स्टेपिंग मेथड। स्टेपिंग मेथड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं डायग्राम से समझा रहा हूं। यहाँ पर आपको जैसे अपना ये अनइवन ग्राउंड है, ठीक है, इन अनइवन ग्राउंड है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। जैसे मैंने पहला स्टेप ये ले लिया, सेकंड स्टेप्स ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह हमने छोटे छोटे स्टेप्स अपन ने क्या कर लिया, वहां पर कंसिडर कर लिए। स्टेप्स इस तरह कंसिडर करें दैट इज लीनियर, कि वहां पर इतनी लीनियर डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल है। ग्राउंड होगा तो ग्राउंड पर अपन मानते हैं ना, यदि हमारा कर्व है और यदि कर्व छोटा होता है तो अपन क्या कर लेते हैं, उसको अपन लीनियर डिस्टेंस मान लेते, नहीं मान लेते, बहुत छोटे के लिए अपन कर्व को एज ए लीनियर मान लिया जाता है, अपन ये काम करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, वहां पर भी ऐसे अपने छोटे छोटे स्टेप्स काउंट कर लिए। छोटे छोटे स्टेप्स इस तरह काउंट करें कि अपन वी कैन मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अपने पास वहां पर क्या आ जाएगा, ये L1 आ जाएगा। अब आगे अपन को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने जैसे पॉइंट ए पर गया, तो पॉइंट ए को अपन ने क्या करा, वहां पर ग्राउंड पर, मतलब जो हमारा ग्राउंड है, जो स्लोपिंग ग्राउंड पर, उस पर ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर अपन किसके द्वारा करते हैं, ड्रॉप एरो के द्वारा करते हैं, या अपन इसको किसके द्वारा कर सकते हैं, वहां पर प्लम बॉब के द्वारा भी अपन इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लम बॉब के द्वारा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ड्रॉप एरो के द्वारा भी अपन उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ से अपन ने L2 मेजर कर लिया, फिर अपन यहाँ से उसको ग्राउंड पे चल जाएंगे, स्लोपिंग ग्राउंड पर, फिर अपन L3 मेजर कर लिया, फिर स्लोपिंग ग्राउंड पे चल जाएंगे, इस तरह L4, फिर स्लोपिंग ग्राउंड, इस तरह। तो अपन ने इस तरह सबको अपन ने मेजर कर लिया। उसके बाद जो मेजरमेंट आया उसको अपन ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, समेशन ऑफ द L। D इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पर समेशन ऑफ द L। आएगा नहीं आएगा? दिस मेथड इज नोन एज द स्टेपिंग मेथड और डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरा आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में अपन क्या करते हैं, वहां पर एंगल मेजर करते हैं। यहाँ पर जैसे स्लोपिंग ग्राउंड है, स्लोपिंग ग्राउंड है, तो आप यदि स्लोप वहां पर बिल्कुल कांस्टेंट स्लोप है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, मैं पहले सिंपल एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर ये अपना इस तरह का ग्राउंड है, वहां पर यदि हमारा इस तरह का ग्राउंड है, माना कि इस तरह का ग्राउंड है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस की सहायता से अपन ये
एंगल मेजर कर लेंगे, अपन ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है। अपन ने ये डिस्टेंस और ये एंगल मेजर कर लिया तो हमारे पास डी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आप जानते हो, क्या जानते हो बोलो, क्या जानते हो? कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? डी डिवाइडेड बाई एल। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस एल, डी डिवाइडेड बाई एल। तो यहां से डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी इक्वल टू आ जाएगा वहां पर आपका एल कोस थीटा। डी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? एल कोस थीटा। आया नहीं आया? यदि आपका स्लोपिंग ग्राउंड वहां पर कांस्टेंट स्लोप नहीं है, स्लोप वहां पर कुछ ग्राउंड पर दूसरी स्लोप है, जैसे कि अपने डायग्राम में है, यहाँ पर देखो ये जो ग्राउंड है ए से बी तक के जो ग्राउंड है उसकी स्लोप अलग है, बी से सी तक जो ग्राउंड है उसकी स्लोप अलग है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं? दोनों जगह अलग अलग स्लोप का एंगल मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर अपन ने थीटा 1 मेजर कर लिया, यहाँ पर अपन ने थीटा 2 मेजर कर लिया। थीटा 1 मेजर कर लिया तो यहाँ पर d1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? d1 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा 1, L1 कोस थीटा 1। d2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? L2 कोस थीटा 2। आएगा नहीं आएगा? तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा? d इक्वल टू आ जाएगा d1 प्लस d2। क्या आ जाएगा? L1 कोस थीटा 1 प्लस L2 कोस थीटा 2। आया नहीं आया? ये आपका क्या आ जाएगा? मेजरमेंट। यहां पर क्या आ गया आपका? ये क्या हो गया? आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई बिटवीन द लाइन AC। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन AC। देख लो यहाँ पर भी मैंने ये लिखा है, L1 इक्वल टू द मेजर्ड इंक्लाइन डिस्टेंस बिटवीन AB, थीटा 1 इक्वल टू द स्लोप ऑफ AB विद हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? L1 कोस थीटा 1। और अपन अब क्वेश्चन आता है कि स्लोप ऑफ द लाइन या एंगल अपन किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन कैन बी मेजर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट which can be used to measure the angle। एंगल मेजरमेंट के लिए अपन क्लिनोमीटर यूज करते हैं। तो अपन बाद में आप आते हैं कि क्लिनोमीटर के बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्लिनोमीटर क्या होता है? क्लिनोमीटर डिवाइस अपन देखना चाहे तो ये क्लिनोमीटर होता है, आपके सामने शो हो रहा है। क्लिनोमीटर में क्या क्या होता है? क्लिनोमीटर एक लाइन ऑफ द साइट होती है, जो AB लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ द साइट, ACB। ACB लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ द साइट। ए ग्रेजुएटेड आर्क, ये दिस आर्क इज द ग्रेजुएटेड आर्क एंड ए लाइन, ए लाइट प्लम बोब। यहाँ पर ये जो है वो क्या है? यहाँ पर लाइट प्लम बोब है ये वाला लाइन, ठीक है। अब क्या करते हैं? जिस भी लाइन का हमको एंगल मेजर करना होता है, जैसे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी मेरा हाथ, यदि अपन क्लिनोमीटर हमारा लाइन ऑफ द साइट है तो यहाँ पर देखो ये 0 के टच हो रहा है। यहाँ पर देखो ग्रेजुएशन किस पे आ रहा है? डार्क ग्रेजुएशन किस पे आ रहा है? 0 पे आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? अब जैसे ही क्लिनोमीटर हमारा इस पॉइंट को एंगल मेजर करना है, तो क्लिनोमीटर को मैंने क्या कर दिया? वहां पर इंक्लाइन कर दिया, उस लाइन की तरफ साइड करने लगे। तो अपन यहाँ से क्या होता है? आई होता है, यहाँ पर आई ओबेन होता है। तो जैसे अपन आई वेन से लाइन ऑफ द साइड को हो गए इंक्लाइन हो गए। व्हेन द लाइन ऑफ द साइड इज इंक्लाइन बट प्लम बोब इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। प्लम बोब इज ऑलवेज परपेंडिकुलर मतलब इज इन द ग्रेविटी डायरेक्शन। प्लम बोब हमेशा क्या होगा? ग्रेविटी डायरेक्शन में होगा। लाइन ऑफ द साइड क्या हो गई? वहां पर जैसे शुरू में ये थी तो यहाँ पर एंगल कितना है? 0। अब वहां पर प्लम बोब हमेशा यही रहेगा, लेकिन लाइन ऑफ द साइड क्या हो गई? वहां पर एंगल मेजर करेंगे तो क्या हो गई? वहां पर लाइन ऑफ द साइड को मूव करना पड़ेगा। When you are moving the line of the side, then the arc, graduated arc also move। देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि वहां पर जो प्लम बोब लाइन है वो वहां पर क्या है? कांस्टेंट है, वहां पर हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे ही हमने लाइन ऑफ द साइड को मूव करा तो विद द लाइन ऑफ द साइड ग्रेजुएटेड आर्क इज मूव। और वहां पर उस केस में जो लाइन ऑफ द साइड है, सॉरी प्लम बोब लाइन है, वहां पर ग्रेजुएटेड आर्क से अपना एंगल शो कर देगा कि ग्रेजुएट जो लाइन ऑफ द साइट है, जो लाइन ऑफ द साइट है वो वहां पर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो हमको रीडिंग कौन दे देगा? वहां पर प्लम बोब दे देगा। देखो डायग्राम से पता लग रहा है, दिस एंगल यहाँ पर ये कितना मूव हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूव हुआ वो एंगल कितना है? थीटा। और वही यहाँ पर क्या है? वो थीटा है। बराबर है या नहीं है? बोलो। देखो मैंने ये चीज यहाँ पर थ्योरी में लिख रखी है। ए सेमी सर्कुलर ग्रेजुएटेड आर्क
with 2 pin at A and B forming the line of sight. लाइन ऑफ द साइट है, ग्रेजुएटेड आर्क है, 2 पिन है ए बी जो कि लाइन ऑफ द साइट बनाता है. ए प्लम्बो भी सस्पेंडेड फ्रॉम द सी, सी से वहां पर प्लम्बो सस्पेंडेड था. द सेंटर पॉइंट वह सेंटर पॉइंट था. व्हेन द क्लिनोमीटर इज हॉरिजॉन्टल द थ्रेड टच द जीरो मार्क ऑफ द कैलिब्रेटेड सर्किल. जीरो को ये टच कर रहा था, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. देन टू साइट ए पॉइंट क्लिनोमीटर इज टिल्टेड. मैंने बोला लाइन ऑफ द साइट टिल्टेड करते हैं, क्लिनोमीटर टिल्ट करते हैं तो क्लिनोमीटर क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ द साइट ए बी पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पास हो जाएगा. ऑब्जेक्ट से पास हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, लेकिन जो प्लम्ब होता है वो हमेशा वर्टिकल रहेगा, ग्रेविटी डायरेक्शन रहेगा. तो वहां पर वह कितना मूव कर रहा है ग्रेजुएटेड सर्किल, उसकी रीडिंग को अपन को क्या दे देगा, वहां पर रीडिंग दे देगा कि वहां पर क्लिनोमीटर को आपने कितना मूव करा है. टू वॉच द ऑब्जेक्ट, वहां पर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपने वहां पर क्लिनोमीटर को कितना मूव करा है, और वो हमको क्या दे देगा, वहां पर स्लोप ऑफ द ग्राउंड दे देगा. आई थिंक सब चीज क्लियर होगी कि एंगल कैसे मेजर करते हैं. एंगल मेजरमेंट के लिए अपन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज ले सकते हैं, क्लिनोमीटर. व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर की वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ समझ आ गया. ठीक है, अब आता है एरर इन द चैनिंग. ठीक है, अब अपन का आता है कि चैनिंग में कौन कौन सी एरर हो सकती है. पहला अपन पढ़ चुके हैं कि वहां पर जो चैन है वो इनकरेक्ट चैन है. इनकरेक्ट चैन है, जैसे अपने 19 मीटर से वहां पर ए बी मेजर कर रहे हैं, 19 मीटर्स वाली चैन से वहां पर बी सी सी डी. तो यहाँ पर यदि जो एरर है वो पॉजिटिव है तो इसके मेजरमेंट में भी एरर पॉजिटिव आएगी, इसके मेजरमेंट में भी एरर पॉजिटिव आएगी. आएगी नहीं आएगी. तो एरर पॉजिटिव आती जा रही है, तो एरर तो पॉजिटिव पॉजिटिव एरर क्या होती जा रही है, जुड़ती जा रही है. तो दिस एरर क्या होगी वहां पर, क्यूमुलेटिव एरर. ठीक है, अगला बैड रेंजिंग. बैड रेंजिंग का मतलब अपन का यहाँ पर ए बी था, इंटरमीडिएट पॉइंट डिसाइड करना था, आपने ये डिसाइड कर लिया. यदि आपने अब इंटरमीडिएट पॉइंट ये डिसाइड कर लिया तो अगला इंटरमीडिएट पॉइंट भी क्या होगा, रूम होता जाएगा. तो बाकी के जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट होंगे वो क्या होते जाएंगे, गलत होते जाएंगे. तो वहां पर एरर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एरर जुड़ती जा रही है. इफ द एरर इज इन क्यूमुलेटिव वे, मतलब एरर यदि वहां पर जुड़ती जाए, then this type of the error is known as the cumulative error. हमने पढ़ लिया था. If the error follow the same mathematical way, if the error show the same trend, then that error will added. वह एरर क्या होगी, वहां पर जुड़ती जाएगी, और उस एरर को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, क्यूमुलेटिव एरर. अगला सैग करेक्शन. जैसे कि अपन बोलते हैं वहां पर ये ग्राउंड है, हमारा माना कि ये ए बी है, ये ए बी. ठीक है, माना कि ये ए बी है. ठीक है, आपने यदि हमारी चेन सैग हो गई तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा. तो यहाँ अगला मेजरमेंट भी अपन यहाँ से ही करेंगे तो ये भी सेग हो गया. तो ये भी यहाँ पर भी एरर क्या होगी, यहाँ पर भी एरर ज्यादा हुई, यहाँ पर भी एरर क्या हुई, जो एरर यहाँ पर आएगी वही एरर यहाँ पर आएगी, वही एरर यहाँ पर आएगी. तो एरर क्या होती जाएगी, वहां पर जुड़ती जाएगी, और दैट एरर इज नोन एज द क्यूमुलेटिव एरर. उस एरर को अपन क्या बोलेंगे वहां पर, क्यूमुलेटिव एरर. इसी तरह टेम्परेचर में, टेम्परेचर वेरिएशन में माना कि हमारी जो चैन होती है वो किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है. हमने चैन को माना 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन ने स्टैंडर्ड या मैन्युफैक्चर करा है. वहां का टेम्परेचर यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपकी चैन एक्चुअल लेंथ की चैन से क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ जाएगी. आपकी चैन जो है, आपकी जो चैन है वो क्या हो जाएगी, डिजाइन चैन से बढ़ जाएगी. और आपकी चैन यदि डिजाइन चैन से बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो आपका मेजरमेंट क्या होगा, वहां पर आप क्या मेजर करोगे, कम मेजर करोगे. कम मेजर करोगे तो वहां पर करेक्ट एरर क्या आएगी, नेगेटिव एरर. नेगेटिव आएगी, करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव. तो अब उस टाइम पर यदि आप कितनी ही लाइन मेजर कर लो, सबकी सब में एरर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. और एरर नेगेटिव आएगी तो एरर क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी. ठीक है, यदि वहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 15 डिग्री आ गया तो आपकी जो चैन है
वो स्टैंडर्ड चेन से क्या हो जाएगी, वहां पर छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक हो जाएगी तो आप मेजरमेंट क्या करोगे, ज्यादा करोगे। ज्यादा करोगे तो वहां पर एरर क्या आएगी, वहां पर पॉजिटिव आएगी। एरर पॉजिटिव आएगी तो करेक्शन क्या होगा, वहां पर नेगेटिव होगा। इफ द मतलब इस मतलब क्या होगा, वहां पर उस समय कितना ही मेजरमेंट कर लो, चाहे 10 लाइन मेजर करो, चाहे 15 करो, सब में नेगेटिव एरर आएगी, नहीं आएगी। नेगेटिव एरर आएगी, इसका मतलब वहां पर ऑल द मेजरमेंट फॉलो द सेम पैटर्न। देन सेम पैटर्न है तो वहां पर एरर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। एरर जुड़ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर एरर आर इज क्यूमुलेटिव। एरर आर इज क्यूमुलेटिव, ठीक है। इसी तरह मैं बस यहां पर आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपकी कौन सी एरर क्यूमुलेटिव है, कौन सी एरर कंपनसेटिंग है। यहाँ पर डिफरेंट तरह की चेन में एरर आ सकती है, उनमें से क्यूमुलेटिव एरर कौन सी होगी, कंपनसेटिंग एरर कौन सी होगी। क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है which of the following error is compensating error। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वाइवा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी एरर कंपनसेटिंग एरर है, निम्न में से कौन सी एरर वहां पर क्यूमुलेटिव एरर है। अब आते हैं वेरिएशन पे, पुल में। जैसे कि आप चेन को पुल कर रहे हो, ए से भी मैंने बोला था कि वहां पर चेन को अपन बिल्कुल स्ट्रेस करते हैं, और वहां पर यदि कुछ पॉसिबिलिटी होती है, यदि कोई वहां पर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो चेन को जर्क भी दे देते हैं अपन, जिससे कि चेन क्या हो जाए, वहां पर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, अपन ने माना कि अपन को वहां पर ए से डी मेजरमेंट करना था, यहाँ पर इंटरमीडिएट पॉइंट आ गया बी, सी और पी। यहाँ पर आपने चेन को एक्चुअल जहां पर बहुत जोर से खींच लिया तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या करा, चेन को बिल्कुल हल्का छोड़ दिया, खींचा ही नहीं वहां पर, तो चेन क्या हो जाएगी, एक्चुअल चेन से कम मेजर करेगी। यहाँ पर आपने ज्यादा कर लिया, यहाँ पर कम कर लिया, या यहाँ पर भी ज्यादा कर लिया, यहाँ पर भी ज्यादा करा, यहाँ पर भी ज्यादा करा, यहाँ पर भी ज्यादा करा, या यहाँ पर भी कम करा, यहाँ पर भी कम करा, यहाँ पर भी कम करा, यहाँ पर भी कम करा। तो यहाँ पर ऑल पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो पुल की वजह से जो एरर आती है, करेक्शन जो होता है, एरर जो होती है वो क्यूमुलेटिव भी हो सकती है और कंपनसेटिंग भी हो सकती है। पुल की वजह से जो एरर है वो क्यूमुलेटिव भी हो सकती है और कंपनसेटिंग भी हो सकती है। आई बात समझ में नहीं आई? तो अपन आज का लेक्चर यहां पर ही खत्म करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ द डाउट, अब तक के 7 लेक्चर में कोई भी डाउट है, देन यू कैन आस्क मी फ्रीली directly on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9785864940। सीधा मेरे WhatsApp नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बोर्ड। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब तक के लिए इतना ही, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।